Today we will discuss about the data interpretation. Data collection we have discussed, data analysis we have discussed, then we will go for the data interpretation. Sir, good afternoon. Afternoon. Data interpretation is one of the easy sections for the competitive examination. ये आपको competitive examination में भी quantitative aptitude में बहुत ज्यादा आता है. ये कौन सी यूनिट है सर? फर्स्ट यूनिट. कौन सी यूनिट है सर? ये यूनिट फर्स्ट. It is an expansion of the mathematical skills and the accuracy. Data interpretation is nothing but a drawing conclusion and inferences from a comprehensive data presently numerical in the tabular form by means of illustration, these graphs and pie chart. आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, डाटा से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, उसी को डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं. टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, चार्ट के फॉर्म में दिया रहेगा, वो डाटा आपको दिया हुआ रहेगा और आपको कंक्लूजन निकालना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, उसी को डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं. Thus, the act of the organizing and interpreting data to get meaningful information is data interpretation. Organize करना, interpret करना, उसको data interpretation बोलते हैं. A good grasp of the basic geometric as well as arithmetic formula is must to score high in this section. Familiarity with the graphical representation of the data like the Venn diagram, graphs, pie charts, histograms, polygon, etc. should be taught. है ना, यही सब यूज किए जाते हैं. वेन डायग्राम बनाया जाता है, ग्राफ्स बनाया जाता है, पाई चार्ट बनाया जाता है, हिस्टोग्राम बनाया जाता है, पॉलीगॉन बनाया जाता है. Once the data are grasped well, questions based on the table and graphs take very little time. In some data are presented in more than one table or the graphs. The aim of to test only the quantitative skill, but also the relative, comparative, and the analytical ability. The crux of the matter is to find a relationship between the two tables or the graph before attempting the question. Useful tips है, data interpretation question are based on information given in table and the graphs. These questions test your ability to interpret the information presented and to select the appropriate data for answering a question. Get a general picture of the information before reading the question. Read the given titles carefully and try to understand its nature. Avoid lengthy calculation. Generally, data interpretation question don't require to do extensive calculation and computation. Most questions simply require reading the data correctly and carefully and putting them to use the directly with the common sense. Break down lengthy questions into smaller parts and eliminate impossible choices. Use only the information given and your knowledge of the everyday facts such as the number of hours in a day to answer the question based on tables and the graph. Answer the questions asked and not what you think the question should be. Be careful while dealing with the units. To make reading easier and to avoid errors, observe graphs keeping them straight. Be prepared to apply basic mathematical rules, principle, and the formula. Number 10, since one of the major benefits of the graph and table is that they present data in a form that enables you to readily make comparison, use this virtual attribute of the graphs and table to help your answer the question where possible. है ना, tables उसमें रहते हैं. Tables are often used in reports, magazine, newspaper to present the state of the numerical facts. They enable the reader to make comparison and to draw quick conclusion. It is one of the easiest, most accurate way of the presenting the data. They require much more closer reading than the graphs of the chart, hence are difficult and time consuming to interpret. One of the main purposes of table is to make complicated information easier to understand. The advantage of the presenting data in a table is that one can see the information at a glance. While answering question based on the tables, carefully read the table title and the column reading. This title of the table gives you a general idea of the type and often the purpose of the information presented. The column heading tell you the specific kind of the information given in that column. Both the table title and the column reading are usually very straightforward. ग्राफ्स जो यूज होते हैं वो सर्कल ग्राफ्स है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, कम्युनिटी ग्राफ्स है ना. तो
ये आपको 4 तरह के जो है ग्राफ्स यूज होते हैं. सर्कल ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो हाउ द वेरियस सेक्टर्स आर इन द होल. सर्कल ग्राफ्स आर समटाइम्स कॉल्ड पाई चार्ट्स. Circle graphs usually give the percent that each sector receives. In such representation, the total quantity in question is distributed over a total angle of the 360 degree. While using the circle graph to find the ratio of the various sector, to find the amounts of the each sector received, and then the ratio of the amount, find the ratio of the percent, which is much quicker. Line graphs are used to show how a quantity changes continuously. If the line goes up, the quantity is increasing. If the line goes down, the quantity is decreasing. If the line is horizontal, the quantity is not changing. This is the line graph. Bar graph, given quantity can be compared by the height or length of a bar graph. A bar graph can have either vertical or the horizontal bars. You can compare different quantity or the same quantity at the different times. In bar graph, the data is discrete. Presentation of data in this forms make a evaluation of the parameter comfortably very easy. Cumulative graphs, you can compare several categories by a graph of the cumulative type. These are usually bar or line graph where the height of the bar or line is divided up proportionally among the different quantity. है ना. कुछ इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है जो डाटा इंटरप्रेशन में. स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. Production of sugar by the 6 major production units of India in the million tons. ये आपको दिखाया गया है. 6 प्रोडक्शन यूनिट है A B C D E F. इस मंथ में अप्रैल में जून जुलाई अगस्त में ये आपको दिखाया गया है सबका. क्वेश्चन नंबर 1, इन विच मंथ द यूनिट B हैज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15% इन द टोटल शुगर प्रोडक्शन. है ना. किस मंथ में यूनिट B का जो है कंट्रीब्यूशन 15% जो है आपको आता है. ये आपको डाटा से बताना है ना. तो इसके जो आंसर हैं ये आपको यहां पर निकाला हुआ है. आंसर 1 का C हो गया. टोटल प्रोडक्शन इन द अप्रैल यहाँ पे निकाला हुआ है. 15% कितना हो गया, इतना हो गया. टोटल प्रोडक्शन इन द जून ये निकाला हुआ है. 15% कितना हो गया, इतना हो गया. टोटल प्रोडक्शन इन जुलाई ये हो गया. 15% ऑफ द जुलाई ये आपको निकाला हुआ है. टोटल प्रोडक्शन इन द अगस्त ये आपको निकाला हुआ है. Hence the month in July the unit B has a contribution of approximately 15% in the total sugar production. ये आपको यहाँ पे निकाला हुआ है ना. जी सर. जी सर. यहाँ निकालने के बाद सबसे लास्ट में आपको आंसर दिया हुआ है. आंसर ऑफ द प्रैक्टिस टेस्ट सारा आपको आंसर जो है यहाँ पर नीचे लास्ट में आपको दिया हुआ है. तो आपको यही जो है काम है डाटा इंटरप्रेशन में, है ना. टेबल रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट शो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर ओवर मंथ्स. कौन सा यूनिट जो है कंटिन्यूअस जो है इंक्रीज दिखा रहा है प्रोडक्शन का शुगर में, है ना. देखिए कौन सा यूनिट आपको दिखा रहा है. ये भी दिखा रहा है ना. जी सर. ये दिखा रहा है और दूसरा कोई नहीं दिखा रहा है. तो यहां पर कौन सा यूनिट दिखा रहा है वो देख करके आपको जो है आइडिया लगेगा. डी नहीं है ना. एच भी ई भी नहीं है. ए है सर. ए है. तो आंसर आपका यहां पर ए है. यहां पर आपको आंसर आपको दिया हुआ है ना. यूनिट ए शोज द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर ओवर मंथ, है ना. ये डाटा का जो इंटरप्रिटेशन है उसी तरह नंबर 3 में इन केस ऑफ द यूनिट ई इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मंथ्स द प्रोडक्शन शुगर वाज इक्वल, है ना. कौन सा मंथ में जो है यूनिट ई में, है ना, प्रोडक्शन शुगर इक्वल है. देखिए यहाँ पे एक 140 है, यहाँ पे अप्रैल और मई में है ना. अप्रैल मई में. हाँ. तो यही जो है पेन इंटरप्रिटेशन जो है आपको डाटा का इंटरप्रेशन 3 का यूनिट में अप्रैल एंड मई में है ना. 3 का क्वेश्चन ऐसे किया हुआ है. तो डाटा इंटरप्रेशन इसी को कहते हैं. टेबल दिया हुआ रहेगा और डाटा को इंटरप्रेट करना है. इन द मंथ ऑफ द जून हाउ मेनी यूनिट्स हैव ए शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर, है ना. 4 में आपको किसमें कितने यूनिट में जो है जून में
जून का ये आपको दिखाया गया है, इसमें कह रहा है कि 25% से ज्यादा किस किस यूनिट में जो है आपको हो रहा है ना। तो ये जी आपको सर, 4 का दिया कैलकुलेट हुआ है, करना है। टोटल प्रोडक्शन इन द जून ये हो गया। फिर 25% ऑफ दिस वन, दिस यूनिट हो गया। एंड द यूनिट वो यूनिट वन सोज मोर, है ना। यूनिट वन जो है मोर आपको दिखा रहा है, इसी को डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जी सर। फिर पांचवा है व्हाट आर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द शुगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट बी इन जून एज कंपेयर टू अप्रैल, है ना। पांचवा का आपको ये आंसर, आपको पांचवा का ये दिया हुआ है। इन यूनिट बी द प्रोडक्शन इन जून 160, द प्रोडक्शन इन अप्रैल 180, डिक्रीज इन परसेंटेज, है ना। ये आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। जी सर। ये आपको 10% हो गया। फिर डायरेक्शन दिया हुआ है 6 से 10 तक के लिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ए और बी का ग्राफ दिया हुआ है, ये प्राइस इन रूपी दिया हुआ है, इधर मंथ दिया हुआ है ना। हम्म। व्हाट वाज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी ए एंड बी इन द मंथ ऑफ द अप्रैल। ए एंड बी का क्या डिफरेंस है इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, वो बता रहा है। दोनों का लेस कर देंगे सर, हाँ, ए अप्रैल और का बी ये का। हो गया, हाँ, है ना। प्राइस डिफरेंस दोनों का जो है ना, इसका 1000 हो गया, इसका 1150 हो गया, 1150। हाँ, तो 150 डेढ़ हो सौ गया, रुपये का फर्क आ गया। हाँ, है ना। what was the difference in the average price between the commodity A and B from April to August, है ना। इसका commodity भी। अप्रैल टू अगस्त, है ना। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। जी सर। एवरेज प्राइस ऑफ द कम्युनिटी ए फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त ये इतना हो गया, एवरेज प्राइस ऑफ द कम्युनिटी बी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त इतना हो गया, डिफरेंस हो गया, ये इतना डिफरेंस हो गया 75। आंसर इज द बी, है ना। जी सर। सभी क्वेश्चन के लिए आपको बारी बारी से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द मंथ वाज द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी ए इज द सेम। प्राइस ऑफ द कम्युनिटी ए जो है कौन सा कम मंथ में आपको सेम रहता है ना। ए वाला ऊपर वाला है, तो देखिए यहाँ एक सेम है और यहाँ सेम है ना। ये जनवरी, जैन में और अगस्त में। जनवरी और अगस्त में 8 का दिया हुआ है ना। अप्रैल अगस्त दे रहा है, अप्रैल अगस्त, अप्रैल और अगस्त में वो सेम रह रहा है। अप्रैल है ना, ये अप्रैल हो गया और ये अगस्त हो गया। कम्युनिटी ए का ये वाला सेम सेम है, अप्रैल अगस्त जैन का। और अप्रैल। जी अप्रैल जी अगस्त, अप्रैल में है ना, अप्रैल ये हो गया, अगस्त ये हो गया। जी सर। तो इसी तरह को, इसी को डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, है ना। ये आसान है। दूसरा क्वेश्चन जो इस टाइप का है वो आपको इस तरह का है, प्रोडक्शन स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बार ग्राफ दिया हुआ रहता है। प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन ओवर द ईयर्स 100,000 टन्स, ये आपको 93 में इतना हुआ, 1994 में इतना हुआ, ये 95 में इतना हुआ, 96 में इतना हुआ, 97 में इतना हुआ, 1998 में इतना हुआ, है ना। in the case of the how many years was the production below the average production of the given years, है ना। तो ये इसमें बार चार्ट है, बार चार्ट में 11 का आंसर दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन आपको निकाला है, ये आपको 1090 टन्स प्रोडक्शन इन द 1993, 95 एंड 97 वाज बिलो द एवरेज। ये आंसर सी हो गया, है ना, 11 का, जी सर। है ना। ये आपको ग्राफ से आपको पता चल जाता है। What was the percentage drop in the production from 1996 to 1997? 1996 से परसेंटेज ड्रॉप कितना हुआ? 96 में 130 हुआ था, 97 में 65 हुआ, तो परसेंटेज ड्रॉप कितना हुआ उसके बारे में आपको बताया जाता है ना। In which year was the production 50% of the total production in 1993 and 1998 together, है ना, ये आपको बताया जाता जी सर। है ना। तो ये एक बार ग्राफ था। दूसरा में आपको दूसरा
Director, study the following graph carefully and answer the question given below. Income and expenditure of a company over the years. 94 में ये इनकम है व्हाइट वाला और क्रॉस वाला एक्सपेंडिचर है. 95 में, 96 में, 97 में, 98 में ये आपको इनकम और एक्सपेंडिचर वो आपको बता रहा है ना. What was the difference in profit between the 95 and the 96? 95 और 96 के बीच में प्रॉफिट का क्या डिफरेंस है ना. तो ये 40-30 है, ये 50-30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 10 है. 10 माइनस 10 लाख हो जाएगा. 16 में 16 का आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है. 16 का आंसर हो गया, 10 लाख हो गया है ना. जी सर. तो इसी को डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं है ना. In the case of the how many years was the income more than average income of the given years? In the case of the how many years was the income was more than average income of the given years? Average income निकालना पड़ेगा, फिर आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा. एवरेज इनकम निकाला है 48 हो गया. Therefore the 95, 97 and 98 the income is more than average income है ना. ठीक है ना. जी सर. तो ग्राफ वाला का वो आपको इसी तरह निकलेगा. अच्छा, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है ना सर ये? ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल चैप्टर है डाटा इंटरप्रिटेशन का. जी. डायरेक्शन, द पाई चार्ट आर ड्रॉन फ्रॉम shows the spending of a country on various sports during a particular year. Study the pie chart carefully and answer the question given below. है ना. % of money spent on various sports for 1 year. ये इसमें दिया हुआ है. वेरियस स्पोर्ट्स में जो मनी जो स्पेंड किया वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है. If the total amount spent on sports during the year was reached this one, the amount spent on cricket and hockey together was कितना होगा तो वो बताना है ना. कितना इसमें एक्सपेंडिचर होगा. जी सर. आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. The amount spent on cricket and hockey है ना, इतना होगा. ये आंसर दिया हुआ है. जी. उसी तरह प्रॉब्लम, out of the following the country spent the same amount on hockey and tennis, golf and football. किसमें सेम अमाउंट खर्चा किया है वो आपको कंपेरिजन से पता चल जाएगा. The country spent the same amount on the football and golf और बास्केट में हो गया ना. हाँ, फुटबॉल में किया है 15%, हॉकी में किया है 15%. ये दोनों में बराबर किया है. तो गोल्फ और बास्केट में भी बराबर है. हाँ, गोल्फ और बास्केट में भी बराबर है. ठीक कह रहे. गोल्फ और बास्केट में भी जो है वो बराबर दिया हुआ है ना. तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो है चार्ट देखिए और उसको बनाइए. पाई चार्ट shows that the most popular game of the country is on the basis of the money spent. किसमें सबसे ज्यादा मनी स्पेंड हुआ है ना. क्रिकेट. हाँ, क्रिकेट में आपको 25% है. क्रिकेट जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना. इसी तरह पाई चार्ट का आपको सारा प्रॉब्लम बन जाएगा. दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट है. The table below gives the production capacity in 1000 units and the percentage utilization in respect of the 3 products A, B and C over 5 years for an organization. Study the table carefully and answer the question. ये आपको ईयर दिया हुआ है, ये आपको प्रोडक्ट ABC दिया हुआ है, ये आपको टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है ना. जी सर. कैपेसिटी दिया हुआ है, यूटिलाइजेशन दिया हुआ है. Approximately what was the overall utilization for all products taken together for the year 1993 है ना. ये आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है. जो पहले था यहां तक तो उसने एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिया. इसी तरह के एग्जाम्पल होंगे जिसमें कि आपको पाई चार्ट बताया और ये ग्राफ बताया और लाइन ग्राफ बताया है ना और टेबल बताया है ना. तो प्रैक्टिस टेस्ट में ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं. प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर नीचे वो पूरा दिया हुआ है. 1 का आंसर क्या होगा, ये प्रैक्टिस टेस्ट का आंसर ये आपको दिया हुआ है. 1 का B, 2 का A, 3 का B, 4 का C है ना, 5 का C, 6 का C. तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है इसी को बोलते हैं. आप यहाँ एक चैप्टर कितने सर, एक यूनिट कितने नंबर की आती है वैसे? एक यूनिट कितने नंबर की आती है?
एक यूनिट आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन देना जरूरी होता है। ओके। हर एक क्वेश्चन, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन रहना जरूरी है। जनरली 8 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, लॉन्ग टाइप में 8 क्वेश्चन जी रहते हैं। और 2 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, उसमें जो है सभी यूनिट के क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन किसी और दूसरे यूनिट से रहता है। तो ये तो हमारा 75 मार्क्स का पेपर होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, आपको मैं बता ओके। देता हूँ कि कितने नंबर का है, मैं बता देता हूँ। हाँ, थ्योरी आपका 75 का है और सेशनल 25 मार्क्स का है। तो सेशनल ओके। में एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट हम जो है ऑनलाइन कर लेंगे। 5 एमसीक्यू टेस्ट उन्होंने लिया था बीटेक के लिए, हाँ जी हाँ जी। है ना। 5 जी सर। 5 एमसीक्यू टेस्ट जो है वो बीटेक के लिए उन्होंने लिया हुआ है। तो 5 एमसीक्यू टेस्ट जो है मैं ले लूंगा, है ना। एमसीक्यू हम्म। क्वेश्चन वो दे दूंगा। 5 जो है टेस्ट लेना जरूरी है वाईएमसीए का। ओके। और उसका कह जी रहा है सर। कि उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, वाईएमसीए रिकॉर्ड मांग रही ओके। है ना। तो जी सर। सबका रिकॉर्ड मांगती है, तो उसका जो है, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो है ना वो आपको जी। भेज दूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, और फिर जो है आपको उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। क्वालिटी मैनेजमेंट का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी जो है उसमें बुक आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में दे दूंगा, और उसी क्वेश्चन जी से सर। जो है वो फिर आएगा, है ना। ठीक है सर। हाँ, जी सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के सेट में जो है आपको दे दूंगा। सर इसमें ये पता नहीं लगेगा क्या कि ये चैप्टर कौन सा कितने नंबर का है? तो अ, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे 75 मार्क्स हो गया ना, तो उसमें हाँ जी हाँ आठ जी। 8 क्वेश्चन होंगे। 6 यूनिट है आपके, तो हर एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन होंगे, है ना। पहले जो जी सर। यूनिवर्सिटी में जो आता था वही पैटर्न रहता था, हर एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गए, एक यूनिट से एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कंपलसरी है उसमें। 5 6 यूनिट के एक क्वेश्चन रहते थे, जी। है ना। और एक क्वेश्चन कहीं जी और सर। से रहता है। तो यही पैटर्न ओके। है। तो उसी के बारे में जो आपको करना है, तो जी सर। आगे ले चलें कि यहीं पे रहने दें। सर इतना ही रहने दीजिए। ये कौन सी, ये अपनी पहली यूनिट थी ना सर हमारी ये? अब पहली यूनिट है, उसमें नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन बताया हुआ है। वो कल मैं आपको जी। नेसेसरी क्या क्या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे है, जी। क्वेश्चनियर है, यही सारा है रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो उसके बारे में कल जो है आपको मैं डील करूंगा, है ना। कल तो छुट्टी होगी ना सर, क्रिसमस की? अमित गुप्ता से बात की है, क्या कर रहा है वो? नहीं, मेरी बात नहीं हुई सर अमित जी से। हाँ, कुछ बताया तो है नहीं, कुछ बताया तो है नहीं। ओके। कल क्रिसमस भी है, सही कह रहे। तो कल मैं आपको फोन करके व्हाट्सअप कर दूंगा। श्योर सर। हाँ, उसको फोन करके पूछ लेते हैं क्लास लेना है क्या करना जी सर। है ना। ठीक है सर। हाँ हाँ, ये तो ठीक है सर। नेशनल हॉलीडे है। जी सर। नेशनल हॉलीडे है कल तो। नहीं, छुट्टी रहती है सर नॉर्मली इसकी ना। हाँ हाँ, वो नेशनल हॉलीडे है। जी। तो बाकी सर अमित जी ना क्लास ले नहीं रहे अमित सर। क्यों नहीं ले रहे? पता नहीं सर, वो शायद कुछ कहीं पे बिजी है आई थिंक। तो अमित जी, अटेंडेंस का उन्होंने। जी। अच्छा, अमित जी क्लास ले नहीं ले रहे? हाँ, और बीच में इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा। हाँ, तो हुआ था बीच में, इंट्रोडक्शन लिया था, फिर उसके बाद कहीं शायद वो बिजी थे, सीए के एग्जाम चल रहे थे ना कहीं पे कॉलेज में। अच्छा। तो उसमें बिजी थे वो। हाँ हाँ, इसमें इसमें डिफिकल्ट भी है, जो एमटेक का सिलेबस नया है ना। तो जी सर। ये सब टीचर की जो है ना पढ़ाने के इसमें हिम्मत नहीं है, सब पढ़ा देगा इसको। इसमें क्या है कि इसकी इसकी बुक कोई है नहीं, ये भी जी चक्कर है सर। इसमें। ये भी चक्कर इसमें है, बुक इसमें है नहीं। ओके। तो बुक इसमें एक बुक नहीं रहने से डिफरेंट बुक का दिया हुआ है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है। तो
जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहले नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा सकेगा इसको, जी पक्का सर। दावा है, क्योंकि नए नए टॉपिक हैं। और परवेज अली ले रहा है। हाँ वो सर तो ले रहे थे सर, बीच में ना उन्होंने शायद कुछ कॉलेज के साथ उनका बात बात चल रही है कुछ, हाँ। तो अभी तो नहीं ले रहे क्लास, बीच में काफी ली थी क्लासेस उन्होंने सर ने। अच्छा, जी। फिर क्लास बंद कर दी है उसने। हाँ बीच में तो मना कर दिया सर उन्होंने अभी क्लास के लिए, तो आप ही क्लास चल रही है सर अभी तो। अच्छा अच्छा। हाँ बाकी मैं तो सर वेट ही करता हूँ कि क्लास चले तो आप अटेंड करें, हाँ हाँ क्योंकि कुछ हाँ। कुछ ना कुछ नया मिलता ही है सर सीखने को। हाँ नहीं, ये तो आपको एडवांस लेवल है ना, एमटेक में आपका एडवांस लेवल है। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इसका सिलेबस अलग है, बीटेक का सिलेबस अलग है। जी इंटेलेक्चुअल सर। प्रॉपर्टी राइट में बिल्कुल ये सिलेबस नहीं है। मैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी पढ़ाता हूँ। वो जी सर। वो जनरली एमबीए में पढ़ाया जाता है, लॉ का ये सब्जेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जी सर। जी। अच्छा, वो परवेज अली भी छोड़ दिया है अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ा था, बीच में लिया था अभी 3-4 दिन ही हुए हैं उनको। अच्छा, इस वीक में नहीं लिया है वो। इसी वीक हाँ में नहीं लिए सर। हाँ हाँ। हाँ वो इसका वो सैलरी का चक्कर है। जी जी जी। सैलरी का वो चक्कर। बता रहे थे कि कॉलेज के साथ उनका कुछ चल रहा है, तो इसी वजह से वो अभी ले नहीं रहे कुछ क्लासेस। हाँ हाँ हाँ। फिर वो तो खैर उनका अपना पार्ट है सर। हाँ नहीं, कॉलेज वाले दे नहीं रहे ना, सैलरी नहीं दे रहे, इसी से नहीं ले रहा वो। ओके। अब तो सब बीटेक की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी सारी। नहीं, बीटेक का अभी एग्जाम चल रहा है। ओके। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर।